here in this video, we will discuss about the previous year questions from CSIR NET exam. So, what is the purpose of solving these previous year questions? So, the purpose of solving question is that while we are solving the previous year questions, we will get some idea about the examination, how they are asking or which kind of questions are there. For example, we usually see in examination there are two type of question. One is memory based and second one is concept based question. So the idea of the CSIR NET exam is concept based questions. Particularly if we see the part C section of the exam, we will find that they are asking about the concepts behind the topic. They will not ask about the fact or where we have to keep memorize the facts. They will not ask like that. And if we talk about ICMR exam and CSIR exam, the both for these examinations the syllabus is same. Okay, but if we look into the examination based questions, we will find out that in ICMR they are asking about the memory based facts. Okay, they will put the direct question, while in CSIR NET examination they will not ask the memory based question. Particularly part C, they will ask concept behind the topic. That's why here we will discuss the previous year questions of the CSIR NET. Already in my previous video I discussed about the carbohydrates. So the PYQs are also based on this topic, carbohydrate. So first question of CSIR NET on carbohydrate was on epimer. I will discuss it in detail. The question is on epimers. Epimer. Okay, so in my last video in oligosaccharides, where I discussed the lactose molecule. Okay, the lactose molecule is made up of galactose and glucose. Okay, so there I discussed what is the difference between glucose and galactose, and we discussed that the glucose and galactose molecule, they have the same structural formula, C6H12 and O6, but they are different at one specific carbon atom. Rest of molecule is same, and the difference at the carbon is that they are different in some arrangement of the atom around the single carbon atom, other than anomeric carbon atom. So I will discuss here the detailing of the epimers. So what are epimers? Okay, epimers are different at only the spatial arrangement of the atom around a single carbon atom, other than anomeric carbon, that is carbon number 1, and the rest of molecule is same, and the structure molecule formula of the both the molecule is also same. For example, here the CSI asked the question about the epimers, like the question is, following are structure of stereoisomers of aldohexose which differ in stereochemistry. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था कि हमारे पास मान लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है. ठीक है, आई विल हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, दैट इज ग्लूकोज. और ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें पता है फर्स्ट कार्बन एटम पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ. सो डी ग्लूकोज का मतलब हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जो हमारा फिफ्थ कार्बन है OH जो है वो राइट साइड होगा, दैट इज एक्सप्लोरेटरी. ठीक है, राइट साइड में हम इसको प्लेस करेंगे. उसी तरह से फोर्थ कार्बन पे भी आ जाएगा, थर्ड पे हाइड्रोजन एंड सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, इस तरह से हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है. यहाँ पे हम इसको बैलेंसी को जो है वो फुलफिल कर लेंगे. यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन. ये है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक और इन्होंने मॉलिक्यूल दिया हुआ था मैनोज.
या हम गैलेक्टोज के बारे में, एक गैलेक्टोज दिया है, एक मैनोज दिया है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। यह हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, ओके। क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं, मतलब इनका फॉर्मूला सेम रहेगा C6H12O6। फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ दीज मॉलिक्यूल। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एपिमर कैसे हुए, अब हम देखेंगे। मान लो ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन पे क्या है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक। सो OH, OH, H, H, OH, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, 6 कार्बन, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, 6 कार्बन पे सेम एटम जो है अरेंज हुए हैं, फिफ्थ पे भी अरेंजमेंट सेम है, ये फिफ्थ है, ठीक है, ये 6, 4, थर्ड, सेकेंड एंड 1, ठीक है। सो फिफ्थ पे सेम है। फोर्थ पे देख लेते हैं, फोर्थ पे क्या है कि राइट साइड को यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे है डिफरेंट है मॉलिक्यूल यहाँ पे फोर्थ कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम, थर्ड पे अरेंजमेंट सेम है, सेकंड पे भी अरेंजमेंट सेम है, फर्स्ट पे सेम है। बस जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट कहाँ पे है, फोर्थ कार्बन जो है इसके अराउंड जो यहाँ पे एटम की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के अगर मॉलिक्यूल हैं तो उनको हम बोलेंगे एपिमर्स, ठीक है। अब इसी तरह इन्होंने मैनोज भी दिया हुआ है, ठीक है। मैनोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैनोज भी सेम है, मैनोज का फॉर्मूला भी सेम एज ग्लूकोज, बस यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह से गैलेक्टोज जो है कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है, मैनेज में क्या रहेगा, 4 भी सेम है, थर्ड भी सेम है, इसमें सेकंड पे डिफरेंस आएगा। इसमें सेकंड अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका ग्लूकोज का राइट साइड को है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट साइड को होगा। ये डिफरेंस है ग्लूकोज और मैनोज में। तो ग्लूकोज और मैनोज आपस में डिफरेंट कहाँ पे हैं, एट द कार्बन नंबर 2। और अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो दिस इज डिफरेंट एट द कार्बन नंबर 4, ओके। तो CSIR के सेक्शन सॉरी पार्ट C में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। एंड उन्होंने सबसे जो बेनिफिट था इस क्वेश्चन का वो ये था कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए थे, ऑलरेडी दे ड्रॉड द स्ट्रक्चर इन देयर क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था, ये सारा हमें दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और हम स्ट्रक्चर में देख रहे थे कि ये डिफरेंस है, बस हमें देखना है, डिफरेंस देखना था कि मॉलिक्यूल कहाँ पे डिफरेंट है। और ये ऑलरेडी हमें दिया गया था कि फोर्थ पे ये डिफरेंट है, ठीक है। और ये बनाया गया था वहां पे क्वेश्चन में, बस उसने क्वेश्चन पुट किया था और उसमें उन्होंने पूछा था कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं क्या इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है, या कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंट है, या कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंट है। एंड मैनोज का भी साथ में कंपैरिजन किया था कि ग्लूकोज और मैनोज आपस में कौन सी कार्बन पे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये तो हमें ऑलरेडी हिंट, क्या मतलब आंसर ही क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में ड्रॉ किए हुए थे, बस हमें देख के अगर हमें इतना भी नहीं पता कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज कौन सी कार्बन नंबर पे डिफरेंट है, ये भी क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, बस हमें क्या है कंपैरिजन करना था कि भी हाँ यहाँ पे फोर्थ पे डिफरेंट है, हमें दिख रहा है ये ऑलरेडी, तो हमें बस उसको पिक आउट करना था। सो इसका आंसर था कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, यस दे आर एपिमर्स, और वो एपिमर्स कहाँ पे हैं, एट द कार्बन नंबर 4। और मैनोज और ग्लूकोज दे आर ऑल्सो एपिमर टू ईच अदर, दे आर डिफरेंट एट कार्बन नंबर 2। ये आंसर था, तो जबकि इन्होंने आंसर क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो इस तरह से जो है वो CSIR जो है हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेकआउट करता है। अब यहाँ पे ये हमें डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपिमर्स हैं, तो ये बताओ कि कौन से कार्बन नंबर पे डिफरेंट है। तो ये तो हो गया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कि हमें याद रखनी है चीजें। अब इस तरह के क्वेश्चन ICMR पूछता है। ICMR कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो ये नहीं ड्रॉ करके देगा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वहां पे दे विल आस्क लाइक कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे आर एपिमर्स,
और अगर एपिमर्स हैं तो ये बताओ कि कौन से कार्बन नंबर पे वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जबकि CSIR मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट सी में स्पेशली पूछता ही नहीं है, और इसने आंसर भी खुद ही बताया हुआ था। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ICMR एंड CSIR. The CSIR is totally concept based questions, okay, and these questions are very interesting to solve. Believe me, जब हम इनको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस में डाला जाता है। पर्सनली मेरे को सेक्शन सी के क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था CSIR में, और वो भी 4 मार्क का पूछ लिया गया था, जिसका आंसर क्वेश्चन में ही बताया गया है, ठीक है। अगर हमें क्रैम भी नहीं है ना चीज की कौन सी कार्बन पे ये डिफरेंट है, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ था। बस हमें स्ट्रक्चर को देखना था कि ये दोनों कौन सी कार्बन पे डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरे 4 मार्क का जो था वो पूछा गया था CSIR में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो CSIR अपने पार्ट सी में जो है बनाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। उसमें हमें कुछ एज इट इज याद नहीं रखना होता, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है जो हमने स्टडी की हुई है चीजें, ठीक है। तो वो यही चेक करता है कि हमने कितने क्लियरली जो है हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उस टॉपिक को लेके। सो ये क्वेश्चन था हमारा CSIR का। एक और क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ICMR में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है बिहाइंड द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन दिया गया था हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया था गैलेक्टोज, थर्ड ऑप्शन दिया गया था मैनोज, ठीक है, फोर्थ दिया गया था फ्रक्टोज, ओके। अब क्वेश्चन क्या था, ये मैंने ऑप्शन बता दी। क्वेश्चन था कि हमें इनमें से एक मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है जो कि किस तरह क्या, जो कि अल्डो शुगर नहीं है, नॉट एन अल्डो शुगर, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्डो शुगर कौन कौन से हैं, ठीक है। ग्लूकोज, जैसे ही हमने स्ट्रक्चर जो है इसके कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ने फुल डिस्कस किया था कि इसका जो कार्बन नंबर 1 होता है वहां पे CHO ग्रुप है, और जहां पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया वो कैसा है, एल्डोज शुगर है। तो ये आंसर इसका नहीं है, इसने पूछा है दैट इज नॉट एन आल्डो शुगर, तो ये आल्डो शुगर है ऑब्वियसली ग्लूकोज। गैलेक्टोज अभी हमने स्टडी किया कि सेम फॉर्मूला रहता है, अगर फॉर्मूला सेम है तो इट मीन इसके पास भी CHO ग्रुप है, ठीक है। मैनोज का फॉर्मूला भी सेम है एज टू ग्लूकोज, तो ये सेम है, तो इनके सबके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो जिनके पास एल्डिहाइड है वो तो एल्डो शुगर हुए। रेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा बचता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं हम कीटो ग्रुप, और ये कीटो ग्रुप जिनके पास होता है वो आते हैं कीटो शुगर के अंडर, दे आर नॉट एल्डोजिस। सो द आंसर इज फ्रक्टोज, that is a type of keto sugar and it is not an aldose sugar. So answer is fructose, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, फ्रक्टोज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, दैट इज फ्रॉम हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब हमने एक लेक्चर में हेटेरोपॉलीसेकेराइड भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे जो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन, जो कि एक तरह के हेटेरोपॉलीसेकेराइड हैं, उसमें से क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या था, इन्होंने पूछा था कि हमें ये बताओ कि जो ऑप्शंस दिए गए थे कुछ मॉलिक्यूल्स के, हेटेरोपॉलीसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एंटी कोगुलेंट है। अब ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने एक मॉलिक्यूल डिस्कस किया था हेपरिन, और हेपरिन का हमने फंक्शन देखा था कि एंटी कोगुलेंट जो है वर्क करता है इन ब्लड वेसल। तो इसका आंसर क्या था, हेपरिन, ओके। इसके ऑप्शन थे हेपरिन, हाई हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डर्मेटन सल्फेट। तो हमने सबके फंक्शन जो है वो देखे थे, तो हमने उनमें देखा था कि हेपरिन जो है ये एज ए एंटीकोगुलेंट जो है वो वर्क कराए। तो इस तरह के क्वेश्चन ICMR में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कि
कौन सा जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट बी में भी कई बार ऑप्शन में हो सकता है कि हमें दिया हो कॉम्बिनेशन दिया होता है कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेपरिन जो है एक एंटी कोगुलेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है उस टॉपिक को लेके, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में था स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, थर्ड डेक्स्ट्रिन एंड फोर्थ ऑप्शन था सेल्यूलोज। अब हमें ये देख के हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही हमने पॉलीसेकेराइड डिस्कस किए थे, वहां पे उसी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर ये हमने मॉलिक्यूल स्टडी किए थे स्टार्च, और स्टार्च में हमने देखा था ये दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। और एमिलोज में अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 भी वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहां पे अल्फा 1,4 और 1,6 दोनों प्रेजेंट हो, वहां पे मॉलिक्यूल जो है 1,6 ब्रांच्ड जो है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है बॉन्डिंग, और 1,4 लीनियर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्टार्च में दोनों तरह की होती है, अल्फा 1,4 भी, अल्फा 1,6 भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ग्लाइकोजन डिस्कस किया था, ठीक है। ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमीलोपेक्टिन की तरह है। अमीलोपेक्टिन क्या है, एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है जिसमें ये दोनों होती हैं, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। तो इसमें भी कैसी बॉन्डिंग है, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। नेक्स्ट हमने सेल्यूलोज डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्यूलोज को हमने डिस्कस किया था प्लांट की सेल वॉल में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और इसमें हमने देखा था इसमें लिंकेज होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इस पे बीटा टाइप के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो आपस में लिंक होते हैं थ्रू 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर था। डेक्स्ट्रिन यहाँ पे हम देख लेते हैं, डेक्स्ट्रिन क्या है, ठीक है। डेक्स्ट्रिन एक्चुअली स्टार्च का ही हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। जैसे स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है, स्टार्च अगर हम तोड़ेंगे इसको, ठीक है, हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये अपनी स्मॉलर यूनिट्स में टूटता है फर्दर। तो इसकी जो बीच में ये इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रिन पहले स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके डेक्स्ट्रिन बनता है, उसके बाद जो है वो ग्लूकोज यूनिट जो है वो रिलीज कर जाती है। तो ये भी क्या है, स्टार्च का ही जो है हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसमें भी कैसे लिंकेज रहेंगी, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन्होंने भी क्या पूछा हुआ था कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें वैसे ही क्लियर हो तो हमें पता है कि सेल्यूलोज में कैसी होती है, बीटा 1,4 लिंकेज वहां पे होती है। तो हम इसका जो है वो डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक्सक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है, अगर हमें डायरेक्टली पता हो कि इस मॉलिक्यूल में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ हमें एक आंसर पिक करना है। तो अगर हमें डायरेक्टली मेमोराइज है चीजें कि हाँ स्टार्च में अल्फा टाइप की होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन में भी अल्फा है, डेक्स्ट्रिन में भी अल्फा है, सिर्फ यहाँ पे सेल्यूलोज है जिसमें बीटा टाइप की जो है वो लिंकेज है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो हम इसको डायरेक्टली पिक आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बट अगर हम आईसीएमआर में डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, CSIR भी पूछ सकता है, वो कॉम्बिनेशन में पूछ लेते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाता है बिहाइंड दैट टॉपिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द PYQs, बिकॉज अगर हमें किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो उस लेवल के क्वेश्चन हमें तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे नोट्स भी अकॉर्डिंग टू दैट होने चाहिए। तो इस PYQ से हमें मेन पर्पज यही होता है कि हमें वो आइडिया लगता है कि हमें किस तरह से अपना टॉपिक जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी these PYQs.